भगवान की कृपा का ही परिणाम होता है। तो मेरी तो अपनी आंतरिक भावना रहती है जैसे हम कुछ रियलाइज कर पाए इस छोटे से जीवन में, हम सोचते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग का जितना जागरूक माइंड है, अगर उसको सही में गाइडेंस मिले तो हम सोचते हैं भगवान की कृपा इससे बड़ी क्या होगी। तो आज से 15 साल पहले, लगभग 14-15 साल पहले हम जब वाटरलू में आए तो एकदम मैंने कनाडा में भी ऐसे लोगों को देखा तो मेरी यही भावना हुई, मैं कहा अगर उनको गुरु जी के विचार मिल जाएं, दर्शन हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। उन लोगों ने दर्शन पाए, विचार लिए, तो उन्होंने अपने आप को बहुत ही धन्य बनाया है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतने लंबे समय से गुरु जी के विचार को सुन रहे हैं और यहाँ भी आप हार गए हैं। विशेषकर एलाबामा में कभी नहीं आए थे तो मैंने कहा आते ही जैसा देखा तो सही में पुराना ही लग रहा है, कोई नया नहीं लगा। इसलिए हमें विश्वास है कि यहाँ की जनता बहुत अच्छी तरह से रिसीव कर पाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं इन्हीं सद्भावनाओं के साथ और शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ और उनको चरणों की प्रार्थना करूँगी विभिन्न अपने विचारों से। सुनाओ, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? समझ याद कर रही होगी कैसे मैं बोलता हूँ। वेद के विषय में आप लोग कुछ जानते हैं? वेद शास्त्र के विषय में क्या होता है? अभी आपको कांता जी गीता के विषय में समझाएंगे। ये गीता उपनिषद आपकी पंडिता है और वेद में इन्होंने स्वर्ण पदक दिया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, मास्टर डिग्री। विशेष रूप से हम आप सभी जो हिंदू विचारधारा समझ लीजिए, सनातन धर्म समझ लीजिए, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहते हैं, उसमें वेद की बड़ी महिमा है। वेद ही उसका मूल आधार है। वेद से ही ये सारे शास्त्र निकले, वेद सबका मूल स्रोत। आप लोग 2-3 मिनट शांति से बैठिए, फिर मैं आप लोगों को वेद और विज्ञान इस विषय पर कुछ बातें समझाऊंगा। आप ठीक से बैठने का कष्ट करें तो try to collect your thought and concentrate some minutes. Be calm and quiet. Close your eyes and mouth, because when you try to meditate, you must try to close your eyes. Meditation is nothing but turn your eyes inside and see your source of life. And try to take deep breath. For this, you must close your mouth too. Then you can take deep breath through your nostrils. Keep your backbone straight. When your spinal cord will be straight, automatically your blood circulation, your nervous system all will be in proper position.
attention on your breath. First you should visualize your position. See endless space full with divine energy. And see globe in the space. And your body on the globe in the space. When you will visualize endless space surrounding your body, then you will understand globe and body both are nothing but projection of energy. Energy appeared in the form of globe, and same energy appeared in the form of your body too. But be aware you are not projection of energy, because energy is insentient and your real self is sentient. You are seer, you are knower, you are observer of energy. In other words, you are master of energy. Your real self is the master of energy. Be aware about it. There is one place on the top of head that is called Brahma Chakra in our Sanskrit language. Brahma Chakra is the abode, real abode of your real self. In other words, your self is residing into Brahma Chakra. And self is nothing but manifestation of divine light, that called supreme consciousness. That all-pervasive, infinite supreme consciousness manifests itself in your Brahma Chakra. In the form of consciousness. But that consciousness becomes cause of your little I-ness. Try to understand and try to know this fact. That your I-ness or your ego is nothing but projection of consciousness. But that very consciousness is not limited. That is infinite. In other words, limitless. That is your source of life. Thought and breath both are twins. Both are projection of your I-ness. Both are projection of that supreme consciousness. So try to watch your breath. Try to take deep breath. If you hear any mantra by Guru, you must relate that mantra with breath.
Relax your body, be tensionless. Open your mind and heart, everything must be open, must be relaxed. Only see your body as a house. Realize yourself into Brahma Chakra and watch your breath only. Okay now, try to create holy sound 3 times with me. Long sound, Omkara. And in this way you will see your life energy will flow lower to high, from navel to Brahma Chakra. Okay? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानुदेवस्यैतरुतृतानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दो तीन बार मेरे साथ भगवान का नाम जपो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सतत कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। मनुष्य के लिए धर्म उतना ही आवश्यक है जितना कि श्वास। जैसे श्वास के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसी रूप से धर्म के बिना भी वो जीवित नहीं रह सकता। मैं जिस धर्म की चर्चा करने जा रहा हूँ वो धर्म स्वयं में जीवन का सार सर्वस्व अथवा आधार है। वह धर्म सुकृत धर्म नहीं है,
एक्सेप्टेड धर्म नहीं है, वो फेथ नहीं है, बिलीफ नहीं है, वह एक परम सत्य है, परम तत्व है। वेद उस परम सत्य परम तत्व की व्याख्या करता है। जो धर्म स्वीकार किया जाता है, जो धर्म माना जाता है, जो धर्म विश्वास पर अवलंबित रहता है, वह सनातन नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जब से हमारा विश्वास शुरू हुआ तब से उस धर्म का अस्तित्व है। जिस दिन विश्वास टूट जाएगा धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम उस धर्म में विश्वास नहीं करते, उसे नहीं मानते, उसे स्वीकार नहीं करते। हम उस धर्म को स्वीकार करते हैं जो सनातन है, नित्य है, इटर्नल है, जिसको मानने और न मानने से कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि हम मान लें सूर्य है तब भी है, हम न माने सूर्य है तब भी सूर्य रहेगा। सूर्य की उपस्थिति में कोई कमी नहीं आने की हमारा विश्वास, हमारी मान्यता उसके विषय में या उसके होने के विषय में कुछ अर्थ नहीं रखते। हाँ, है का बोध, है की जानकारी, है का ज्ञान हमारे लिए उपयोगी होता है। जिस धर्म की व्याख्या वेद करता है, जो मनुष्य के लिए प्राणवत आवश्यक है, जिसके बिना मनुष्य मनुष्य नहीं रहता बल्कि मनुष्य की आकृति में पशु हो जाता है, धर्मे विहीना पशु समान, जिस धर्म की बात वेद कहता है, उस धर्म से संबंधित जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर सुनिए और मनन कीजिए। उस धर्म का नाम ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म शरीर का धर्म नहीं है, क्योंकि शरीर सनातन नहीं है। ये कुछ वर्ष पहले माता पिता के रज बीज के संयोग से उत्पन्न हुआ था और कुछ वर्ष बाद में ये समाप्त हो जाएगा। परमाणुओं के संघात मिले हैं, शरीर बना हुआ है। जिस दिन संघात बिखर जाएंगे शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसे सनातन नहीं कहते और शरीर का धर्म भी सनातन नहीं होता। जहाँ शरीर है वहीं हमारी इंद्रियां हैं, इसलिए इंद्रियों का धर्म भी सनातन धर्म नहीं है। हाँ, जब तक शरीर है तब तक इंद्रियां हैं। इंद्रियों का अपना एक नियम है, जैसे नेत्र का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना। ये इंद्रियां एक दूसरे के कार्य में कभी भी दखलंदाजी नहीं करते, कोई उसमें व्यवधान नहीं डालते और एक दूसरे का काम भी नहीं कर सकते। और इनकी भी एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। इनके सुनने की सीमा है, इनके देखने की सीमा है। आपकी आंख कितनी दूर तक देख सकती है उसकी सीमा है। आपके कान कितने फ्रिक्वेंसी के शब्द सुन सकते हैं उसकी सीमा है। इन सब की सीमा है। इसी रूप से आपके हाथ के उठाने की सीमा है, काम करने की सीमा है, आपके पाँव के चलने की सीमा है। यानी जो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां हैं ये सब सीमित है, ये सनातन नहीं हो सकते। क्योंकि जो सीमित है वो सनातन नहीं है। जो सीमित है वो कार्य है, अफेक्ट है, वो एक दिन बना है और एक दिन बिगड़ेगा। जो बनता है बिगड़ता है वो सनातन नहीं होता। सनातन उसे कहते हैं जो नित्य है, शाश्वत है, जो इटर्नल कहा जाता है अंग्रेजी में। इसलिए शरीर नहीं सनातन है, इंद्रियां सनातन नहीं है। फिर मन सनातन है, कहा मन भी सनातन नहीं है। जो आपके चित्त में स्फुरणा होती है अहम की, वहीं से मन का अस्तित्व सामने आता है। जहां पर स्फुरणा बंद हुई वहां मन समाप्त हुआ। प्रगाढ़ निद्रा में आपका मन रहता है क्या? सोचिए जरा। जिस समय आप प्रगाढ़ निद्रा में, डीप स्लीप में चले जाते हैं, उस समय आपके मन का अस्तित्व रहता है? नहीं रहता। और बहुत ऐसे लोग हैं जो साल 2-2 वर्ष तक कोमा में पड़े रहते हैं, जीवित तो रहते हैं वो, लेकिन मन उनका नहीं होता। वहाँ मन काम नहीं करता होता। मूर्छा अवस्था में, कोमा की अवस्था में, घोर निद्रा की अवस्था में मन काम नहीं करता। इसलिए मन भी टेम्पररी है, वो भी परमानेंट नहीं है, उसे भी सनातन नहीं कहते। मन का धर्म भी सनातन धर्म नहीं है। फिर अहम का धर्म सनातन धर्म है? नहीं। प्रगाढ़ निद्रा में तो अहम की भी अनुभूति नहीं होती। क्या घोर निद्रा में आप जानते हो कि आप जग रहे हो या सो रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपना पता होता है, अपने सीमित अहम का बोध होता है? नहीं होता। इसलिए वेद कहता है कि तुम्हारा अहम भी सनातन नहीं है, उसका भी धर्म सनातन नहीं है। फिर सनातन क्या है? सनातन वह तत्व है जो त्रिकालाबाधित हो, जो तीनों कालों में एक सा रहे, जिसमें कभी किसी भी काल में विक्षेप न आवे,
जिसकी स्थिति में कोई बाधा न हो, वह है शुद्ध चेतन। वह शुद्ध चेतन शाश्वत है, सनातन है। उसी को हमारी भाषा में आत्मा कहते हैं। इसलिए शरीर का धन सनातन नहीं, इंद्रियों का धर्म सनातन नहीं, मन का धर्म सनातन नहीं, अहम का धर्म सनातन नहीं। सनातन धर्म संबंधित है आपके नित्य चेतन से, आत्मा से। आप जब घोर निद्रा में जाते हैं तभी आत्मा रहती है। तभी तो जागने पर आप कहते हैं कि हम खूब सोए। खूब सोने का भान किसे था? आपका अहम नहीं था, आपका मन नहीं था। फिर किसको भान हुआ है हम खूब सोए, आज खूब अच्छी निद्रा ली? किसने समझाए? उसी चेतन ने, जिसके लिए भगवान ने गीता में बताया, इंद्रियाणि प्राणाहुर इंद्रियभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परसस्तु सत्। अर्जुन, इंद्रियों से परे तुम्हारा मन है, विषयों से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे तुम्हारी बुद्धि है, बुद्धि से परे जो है वो तुम्हारी आत्मा है। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना। क्योंकि प्रगाढ़ निद्रा में तो बुद्धि भी नहीं होती, विचार भी नहीं कर सकते आप, कोई डिटर्मिनेशन भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होता आपके पास। लेकिन एक होता है, वो है दृष्टा। इसीलिए वेद कहता है कि वो जो तुम्हारी आत्मा है वो दृष्टा है। आत्मा कौन है? दृष्टा है, जो हर एक अवस्था में जिसकी स्थिति बनी रहती है। प्रगाढ़ निद्रा के समय में भी जो जागता रहता है, जो अनुभव करता है कि खूब सोया है, वो तुम्हारी आत्मा है। वो आत्मा ही नित्य है, वही शाश्वत है। उसी के धर्म को शाश्वत धर्म कहते हैं। उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है सच्चित आनंद। ये उसका धर्म है। धर्म माने क्वालिटी, धर्म माने प्रॉपर्टी। एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी। विदाउट प्रॉपर्टी विल फाइंड नथिंग इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी कोई क्वालिटी न हो, जिसकी कोई प्रॉपर्टी न हो, जिसका कोई विशेष गुण न हो। जो वस्तु एग्जिस्ट करती है उसकी कोई क्वालिटी होती है। Whatever exists, that has its own property, its own quality. तो आपकी आत्मा एग्जिस्ट करती है तो आप समझ गए। प्रगाढ़ निद्रा में भी जो जागती रहती है, प्रगाढ़ निद्रा में भी जिसको अनुभव होता है कि वो खूब सोया है, वो आपकी आत्मा है। और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है? What is quality of that? इस विषय पर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। जिस वस्तु के बिना आप रह नहीं सकते, जिस वस्तु को बिना चाहे भी आप भूल नहीं सकते, जिस वस्तु को आप चाहते हुए भी अपने से अलग नहीं कर सकते, वो उसकी क्वालिटी कही जाती है। दूसरे शब्दों में कहते हैं जो सहज है। सहज माने जब वो पैदा हुआ तभी वो वस्तु पैदा हुई। सहज, सहज माने होता है साथ जात जन्मने वाला। तो आत्मा के साथ साथ क्या जन्मा हुआ है? कहते हैं सत, चित और आनंद, ये तीन वस्तुएं। आत्मा जहां भी होगी ज्ञान होगा। वहां थोड़ा ज्ञान हो, ज्यादा ज्ञान हो, सही ज्ञान हो, गलत ज्ञान हो, ज्ञान कैसा है इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज्ञान जरूर होगा। आत्मा है तो ज्ञान होगा। जैसे जहां भी कहीं अग्नि है वहां हीट जरूर होगी, जहां कहीं अग्नि प्रज्वलित है वहां लाइट भी जरूर होगी। बिना हीट और लाइट के आप अग्नि का पता नहीं लगा सकते, और जहां अग्नि होगी वहां हीट और लाइट जरूर होगी। ये उसकी प्रॉपर्टी है। As a heat and light both are property of fire, in the same way सच्चिदानंद is the property of your real self. ये बात समझे? जैसे अग्नि कभी भी हीट और लाइट के बिना नहीं हो सकती। लाइट नहीं है इसका अभिप्राय अग्नि वहां पर प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, लेकिन हीट है वहां, इसलिए आप समझते हैं वहां अग्नि है। इसी रूप से जहां पर चेतन है वहां ज्ञान है, जहां चेतन है वहां मूवमेंट है, जहां चेतन है वहां कॉन्शियसनेस है। जहां ज्ञान है, जहां मूवमेंट है, जहां गति है, वहां पर चेतन मौजूद है। तो चेतन के तीन गुण हैं, चेतन की तीन प्रॉपर्टी है, उसके तीन धर्म हैं, सत्तात्मक, चिदात्मक और रसात्मक। वेद कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वह सत्स्वरूप है, वह ज्ञान स्वरूप है, और वह अनलिमिटेड है, अनंत है, और वह रस स्वरूप है। रसम वायम लब्ध्वा अनंति बोध रसो वैसा, वह रस स्वरूप है। आपके जीवन में यदि नीरसता आ जाए तो आप तुरंत आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाए। जिस समय व्यक्ति का जीवन पूर्ण नीरस हो जाता है, जब वो सोचता है कि कहीं से रस की आशा नहीं है, उसी समय वो सुसाइड कमिट करता है।
कहीं भी जरा सी भी रस की आशा उसे दिखाई देगी, कभी सुसाइड कमिट नहीं करेगा, कभी आत्महत्या नहीं करेगा। इसलिए रस के बिना आप एक क्षण नहीं रह सकते। रस की आशा भी रस स्वरूप हुआ करती है। इसलिए पहला उसका गुण है रस। रसो वही सहरसम लब्ध्वा आनंदी भूत। वेद कहता है कि उस धर्म यानी आत्मा का प्रथम धर्म है रस। वह रस स्वरूप है। जहां रस है वहीं उसको आनंद मिलता है, जहां रस नहीं है, नीरसता है, वहां उसे आनंद नहीं मिलता। जहां जैसे जैसे रस की कमी होने लगती है वैसे वैसे वो अपने जीवन को बंजर पाने लगता है, वीरान देखने लगता है। और जहां बिल्कुल नीरसता आ जाती है वहीं वो जीना पसंद नहीं करता, आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कमिट कर लेता है। इसलिए रस उसका एक धर्म है, ये सहज धर्म है, ये सनातन धर्म है। इसी रूप से ज्ञान उसका एक धर्म है, ये सहज धर्म है, सनातन धर्म है। किसी अज्ञानी को भी कहते हैं कि तुम अज्ञानी हो, उसे बर्दाश्त नहीं होगा। कोई व्यक्ति अज्ञानी कहलाना बर्दाश्त नहीं करता। क्यों? ज्ञान उसका सहज धर्म है, बिना ज्ञान के हो नहीं सकता। जहां आत्मा होती है वहां ज्ञान होता है, जहां आत्मा होगी वहां रस की चाह होगी, वहां रस होगा। और जहां आत्मा है वहां सत्ता है। अभी किसी को कह दो तू मर जा, उसे पसंद नहीं है, क्योंकि आत्मा का धर्म मृत्यु नहीं है। आत्मा का धर्म नहीं है, ये शरीर का धर्म है। शरीर का धर्म यदि आत्मा पर आरोपित करेंगे, किसी को कोई बात झूठ कहेंगे, उसे बुरा लगेगा। आत्मा को मरने की बात कहना ये आत्मा के धर्म के विपरीत है, इसलिए उसे बुरा लगता है। भाई हम तो अमर हैं, तुम मरने की बात क्यों करते हो? हालांकि हम रातों दिन देख रहे हैं हानि हानि, हम देखते हैं हानि हानि भूतानि गच्छन्ति जमाले। हम रातों दिन मरते हुए लोगों को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें विश्वास नहीं है कि हम मरेंगे। क्यों विश्वास नहीं? जानते हो? इसलिए कि आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं। जो मरता ही नहीं उसमें उसे मरने की भावना कैसे आएगी, उसे मरने का विश्वास कैसे होगा? तो आत्मा अमर है, उसमें मृत्यु नहीं है, इसलिए उसको सत्य कहते हैं। वो सत्यात्मक है, वो एग्जिस्ट करती है ऑलवेज, आइदर यू आर अवेयर अबाउट दैट और नॉट। इसलिए वो सत्य है, सत्य स्वरूप है। वेद कहता है कि तुम्हारी आत्मा सत्य है, और वो चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। इसलिए उसे अंधकार प्रिय नहीं है, उसे ज्ञान प्रिय है, और वो रस स्वरूप है। ये सत्य, चित और आनंद, ये तीनों आत्मा की धर्म है। बिल्कुल धर्म है, वैसे धर्म है जैसे अग्नि का धर्म है, जैसे सूर्य का धर्म है, जैसे वायु का धर्म है, जैसे जल का धर्म है, ऐसे आत्मा का धर्म है। और उसको सच्चिदानंद कहते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, ईश्वर अंश जीवय विनाशी सतचेतन घन आनंद राशि। ये जीव परमात्मा का अंश है, ये आनंद स्वरूप है, ये सत स्वरूप है, चिद स्वरूप है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। सो माया बस भयऊ गोसाई बधेऊ कीर मरकट की नाई। लेकिन वह सच्चिदानंद का अंश, उस सच्चिदानंद की किरण, उस सच्चिदानंद का प्रकाश माया के वशीभूत होकर के अपने आप को बधा हुआ अनुभव करता है। जैसे तोते, जैसे बंदर अपने आप को बधा हुआ महसूस करते हैं, ऐसे वो अपने आप को बधा हुआ महसूस करता है। बधा है नहीं वो। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, बंदर को कोई बांधता नहीं। बंदर को पकड़ने वाले जो लोग हैं वो बहुत पतले मुंह का एक घड़ा बनाते हैं, पतले मुंह का, और उसमें जहां बंदर होते हैं वहां पर दिखा करके उसमें रोटी डाल देते हैं ऐसे, और रोटी डालकर वो चले जाते, वहां रहते नहीं। बंदर वृक्ष से उतरता है, आराम से घड़े के पास जाता है, चारों तरफ देखता है, कोई नहीं दिखाई देता, तो रोटी के लिए वो हाथ डालता, उसमें हाथ डाल करके जब हाथ निकालने लगता है रोटी को लेकर के मुट्ठी बांधकर, तो आप लोगों ने सुना होगा ना, बंदर की मुट्ठी बड़ी प्रसिद्ध है। बंदर मुट्ठी बांध ले, मर जाए, खोलता नहीं हो। हाँ, बंदर मुट्ठी यदि बांध ले तो मर जाता है, खोलता नहीं। तो बिन जाने तू फंस रहा है ज्यों बंदर भरमूठ। तो बंदर जब मुट्ठी बांध लेता है, निकालता है उससे, तो घड़े का मुंह सकरा है, हाथ तो चला जाता है लेकिन मुट्ठी नहीं निकलती, और वो सोचता है कि नीचे से किसी ने मुझे पकड़ लिया। अब वहीं पर चिल्लाना शुरू करता है, उसको पता नहीं किसी ने पकड़ा नहीं है। यदि वो मुट्ठी खोल करके हाथ निकालना चाहे तो निकाल सकता है, लेकिन नहीं, वो खोल नहीं पाता। वो जानता ही नहीं कि हमने अपनी मुट्ठी